Good morning, students. Today, topic of discussion is principle of mathematical inductions. That is your chapter number 4, and the introductions. What is induction? That is very important. Induction means to get a conclusion of a results from particular values to the general values. Means if some result is true for n is equal to 1, 2, 3, we can say this result is generally it is true. And second word for induction is deduction, that is anonymous to the word induction. Deduction means from general to particulars. For example, in sequence and series chapters, when the nth term is given to you, that is called as the general value of the terms. And you have to find out the first term, second term, third term. It means from the general terms, you are getting the particular terms. This word is known as deduction. इंडक्शन में आपके पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स रहता है, बिकॉज प्रीवियस 1, 2, 3 ईयर की कोई भी चीज़ें आप ऑब्जर्व कर लीजिए. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट इन नॉर्थ इंडिया समर स्टार्ट फ्रॉम मार्च. आप कहेंगे हाउ यू केम टू नो, बिकॉज यू कैन से बाय इंडक्शंस, कि जब से मैं बड़ा हुआ हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि गर्मियाँ मार्च में शुरू होती हैं. n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, 2 के लिए ट्रू है, 3 के लिए ट्रू है. तो हमने जनरली एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया है कि फॉर इंडक्शंस दिस इज ट्रू दैट एवरी ईयर द समर विल स्टार्ट इन द मंथ ऑफ मार्च. तो इंडक्शंस में मैथमेटिक्स में हम 70% थ्योरम्स बाय इंडक्शन प्रूव करते हैं, and that is the only reason this topic is very important. So this is means you can write out what is induction. लिख लीजिए in simple language. Induction means generalizations from particular cases. Induction means generalizations from particular cases. Induction means generalizations from particular cases. And the second word, deduction. Deduction means application of a general case to a particular case. Deduction means this is the application of general case to a particular case. Means जनरलाइजेशन फ्रॉम पर्टिकुलर केसेस से तो हम इंडक्शन करते हैं, एंड फ्रॉम जनरल केसेस से पर्टिकुलर केस लेना, दैट इज कॉल्ड डिडक्शंस. अभी मैंने एग्जांपल्स आपको दिए हैं कि हम सीक्वेंस एंड सीरीज में जब Tn का फार्मूला लगाते थे वो जनरल केस होता था T1, T2, T3 की, तो उसको हम डिडक्शन कहते हैं. बुक्स ने भी एक मोटिवेशन दिया आर्टिकल 4.2 में. उसने ये कहा है कि अगर जो हम कुछ स्लैब्स खड़ी कर लें, जो डिस्टेंस है स्लैब के बीच में
वो स्लैब की लेंथ से कम होना चाहिए। आज हम फर्स्ट स्लैब को गिरेंगे तो सारी स्लैब गिर जाएंगी। तो दिस इज अगेन ए प्रोसेस ऑफ इंडक्शंस। नाउ इन इंडक्शंस, to prove the question's result is true by principle of mathematical inductions, you have few algorithm, few steps that you have to follow. Let me take first question from the exercise. Total I will deliver 3 lectures on this. First is prove by using principle of mathematical inductions 1 plus 3 square and so on plus 3 raised to power n minus 1 is equal to 3 raised to power n minus 1 by 2. Statement I prove it by using principle of mathematical induction. आप कहेंगे let P of n be, P of n को हम यही लेट करेंगे be a statement for all and belongs to natural number. इंडक्शन हमेशा नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होता है। मतलब इंडक्शन की ये पहचान भी यही है कि हम इसको चेक और वेरीफाई ओनली बाय नेचुरल नंबर में करते हैं। सारे केसेस में हम इसको चेक नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट, व्हेन आई एम राइटिंग P of n, P indicate the statements and indicate the number of term in the left hand side. This is 1, this is 2, this is 3 and so on. Similarly this is n. If the total number of term is more than n, so I can change this symbol. And is a statement means, in mathematics the statement mean either the result will be true or false. मतलब स्टेटमेंट का मतलब हमारे मैथमेटिक्स में तो सिंपल सा यही रहता है, या तो ये रिजल्ट ट्रू होगा या नहीं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में पहला स्टेप हम n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं। लेट n इज इक्वल टू 1, तो हम P of 1 लेंगे। आई आस्क यू दिस इज द नंबर ऑफ स्टेटमेंट। तो जब मैं n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करूंगा तो P of 1 लूंगा, तो यहाँ कॉलन के बाद सिर्फ एक टर्म 1 यहाँ से लूंगा। राइट हैंड साइड में मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगा, तो दिस इंप्लाइज P of 1 इज ट्रू, बिकॉज ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। सपोज अगर मैं P of 2 की बात करता हूँ, आल्दो इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है, बट आपको समझाने के लिए हम ये बात कर रहे हैं। अगर मैं P of 2 की बात करता हूँ तो आप यहाँ पे 2 टर्म लेंगे 1 + 3, आंसर 4 आएगा। आप n की वैल्यू यहाँ 2 पुट करके देख लीजिए 4 ही आएगा। अगर मैं P of 3 की बात करता हूँ तो आप 3 टर्म लेंगे 1 + 3 + 3 स्क्वायर। इफ आई आस्क P of 4 तो आप 4 टर्म लेंगे। मीन्स ये 9 13 आएगा, 27 31 40 आएगा। अब 4 पुट करके देख लीजिए, 3 raised to power 4 is 81, 81 minus 1 4 80 by 2 40. So this is the concept that you should take care. Although in questions only P of 1 is required, P of 2 and 3 and this is 1 marks question. Normally बच्चे n की वैल्यू 1 यहाँ पुट करते हैं, तो that create the problems. तो this step is important to follow. Let P of k is true. हम एक चीज़ को प्रूव सोचेंगे कि ये ट्रू है, लेट कर लिया मैंने, दैट इज P of k. नाउ द नंबर ऑफ टर्म इज k. तो 1 + 3 + 3 स्क्वायर एंड सो ऑन +3 raised to power k - 1
इज 3k माइनस 1 नीचे आएगा, ध्यान रखा करो। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म k हैं। टू प्रूव हम रिजल्ट्स p ऑफ k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। टू प्रूव p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। टू प्रूव लिखा है मैंने, ये बात ध्यान में लिख लेना। इट मीन लेफ्ट हैंड साइड में अब नंबर ऑफ टर्म k प्लस 1 आएंगी, तो यहाँ तक तो नंबर ऑफ टर्म k होगी। k प्लस 1 टर्म लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस k बाय k प्लस 1। तो यहाँ पे भी k को k प्लस 1 से रिप्लेस, ये आपका आंसर आएगा। ये टू प्रूव करना है। कॉलम से स्टार्ट कर सकते हैं। इसको नंबर 2 कह लीजिए। नॉट लेफ्ट हैंड साइड ले लें और राइट हैंड साइड आपका आंसर है। नंबर ऑफ टर्म्स मैंने बता दिए हैं, कितनी हैं ये, k प्लस 1 है। जब आप इसको प्रूव करेंगे तो आप लेफ्ट हैंड साइड का इस्तेमाल करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट अप टू यहाँ तक k टर्म्स है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 3 रेज टू पावर k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 रेज टू पावर k। अगर जो आप यहाँ 3 रेज टू पावर k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 रेज टू पावर k, तो 3 इंटू 3 रेज टू पावर k माइनस 1, तो दिस इज 3 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 1 बाय 2 इज योर राइट हैंड साइड। अब फाइनल लाइन लिखेंगे, दिस इंप्लाइज p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। Therefore, by PMI, principle of mathematical induction, the result is true for all n belonging to natural number n। ये लास्ट लाइन लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चंस हैं। इसके लिए 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला तो यह है कि आप p इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे। कई बार 1 के लिए ट्रू नहीं भी होते क्वेश्चन, फिर हम सीधा 2 के लिए कर लेते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हम p ऑफ k को लेट करते हैं, p ऑफ k प्लस 1 को हम 2 प्रूव करते हैं। 2 प्रूव में मैंने बार बार एक बात के ऊपर जोर दे रहा हूँ कि n इंडिकेट द नंबर ऑफ टर्म्स होता है। 1 का मतलब हम एक टर्म लेंगे, 2 का मतलब 2, k का मतलब हम ये k टर्म लेंगे, k प्लस 1 का मतलब हम यहाँ k प्लस 1 टर्म लेंगे। p ऑफ k से हमने जो ऊपर कहा ना, जब लेट दिस इज ट्रू, तो हम इस रिजल्ट्स का यूज़ भी ज़रूर करेंगे। तो हमने यहाँ यूज़ किया, लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम्स लिया, तो आपका आंसर आ गया। तो मैंने यह क्वेश्चन आपको एक इसलिए कराया ताकि आपकी ये प्रैक्टिस हो जाए। आज आप इसके पहले 5 सम्स करना। मैं एक सम और आपको करा देता हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा आपको इंडक्शन क्लियर हो जाए। इंडक्शन मैंने बता दिया कि हम जर्नल से पर्टिकुलर पे जाते हैं। जर्नल मैंने बता दिया, जैसे मैंने आपको समर का एग्जांपल दिया, क्लियर। मैंने विंटर का एग्जांपल है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी कोई डेरिवेशंस नहीं है, लेकिन हम पिछले सालों से लाइफ में ऑब्जर्व करते आए हैं, इसलिए हम कह देते हैं कि ऐसा होगा। कोई पूछता क्यों होगा, बिकॉज बाय इंडक्शंस। तो ये रिज़ल्ट कोई ज़रूरी भी नहीं है कि 100% ट्रू रहें, ऐसा भी नहीं है, बट मैथमेटिक्स में इनकी डेरिवेशंस का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। मैं थर्ड ले लेता हूँ। टोटल आज आप पहले 6 सम ट्राई करना। थर्ड सम की स्टेटमेंट्स हैं, अगेन ऊपर हेडिंग तो सेम ही है। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन प्लस n। इसको यहाँ से है कि फर्स्ट में एक टर्म है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें n है, nth टर्म में n होंगी, एंड दिस आंसर इज 2n डिवाइडेड बाय n प्लस 1। वही पहला स्टेप, लेट p ऑफ n बी ए स्टेटमेंट्स।
बिकॉज मैंने बताया कि ये फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू एन, क्योंकि नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होता है। इफ़ आई टेक p इज इक्वल टू 1 मीन n इज इक्वल टू 1, तो पहली टर्म यहाँ से 1 लूँगा, यहाँ से 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, दिस इज 1 विच इज ट्रू। लेट p ऑफ k ट्रू, तो p ऑफ k इज कॉलन 1 1 प्लस 2, 1 divided by 1 plus 2 plus 3 and so on, 1 divided by 1 plus 2 plus 3 and so on plus k. The result is 2k divided by k plus 1. We call this is number 1. To prove p of k plus 1 is true. ये जरूरी होता है, जनरल स्टेप्स होता है, के लिए लेट करके के प्लस 1 के लिए प्रूव कर दो। तो पी ऑफ के प्लस 1 के लिए हमें क्या करना होगा, 1 नंबर ऑफ टर्म के प्लस 1 लिखनी होंगी। मेरी इस बात को ध्यान से सुनिए, जब आप नंबर ऑफ टर्म्स कितनी लिखेंगे तो यहाँ पे के प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी 2k किससे रिप्लेस होगा, k प्लस 1 से, ये k प्लस 2 बन जाएगा, इसको नंबर 2 कह दें। प्रूफ के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो, 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 2, 1 बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k इंटू k प्लस 1। चाहे तो इसके बाद एक टर्म और लिखें प्लस, अब k प्लस 1 वाली टर्म लिखो। इसमें आप एस एन का फार्मूला लगाएंगे, आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फार्मूला, AP के अंदर पढ़ा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म k प्लस 1 है, इसका मतलब k किससे रिप्लेस होगा, k प्लस 1 से, एंड विल बी रिप्लेस्ड बाय k प्लस 1। तो अप टू फर्स्ट k टर्म्स तक तो आपको वैल्यूज पता ही हैं, यहाँ तक तो आपको रिजल्ट्स पता है फ्रॉम दिस फर्स्ट। तो विल राइट है 2k डिवाइडेड बाय k प्लस 1। यहाँ पे आपने रिजल्ट्स बना दिया 2 इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2। अगर जो आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, k प्लस 1 इंटू के प्लस 2, 2 कॉमन, k इंटू के प्लस 2 प्लस 1। सिंप्लीफाई करेंगे, k स्क्वेयर प्लस 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इंटू के प्लस 2। ऊपर ध्यान से देखेंगे तो ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो 2 डिवाइडेड इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 2 विच इज योर राइट हैंड साइड। टू प्रूव हम जरूर लिख लेते हैं ताकि k को हम k प्लस 1 से रिप्लेस कर लें, और इसी स्टेप की कैलकुलेशन में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, यहीं पे आपको प्रैक्टिस करनी है। आगे फाइनल आंसर, दिस इम्प्लाइज p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, देयरफॉर बाय PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। आज NCERT बुक्स के पहले 5 क्वेश्चंस आपका प्रैक्टिस कर लेना, फिर भी कोई डाउट्स है तो मुझे बताना, बाकी हम कल के सम्स में वीडियोस में डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस।
देख लीजिए पीछे, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं था कि थर्ड क्वेश्चन मैंने लिया है पी ऑफ एन इज इक्वल टू 1, 1+2, 1+3, 1+4। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। कंप्लीटली वीडियो को पॉज करके देख लेना। मैंने अभी दोबारा समझा देता हूँ कि पी ऑफ एन, ये स्टेटमेंट्स हैं। पहले एन इज इक्वल टू 1 के लिए लिया, एक ही टर्म लेंगे। पी ऑफ के के लिए लेट कर लिया, नंबर ऑफ टर्म के तक लिया, एन को के से रिप्लेस कर दिया। k+1 प्रूव करने के लिए यहाँ पे k+1 तक टर्म लिया, k विल बी रिप्लेस्ड बाय k+1। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड में ये देखा गया कि ये k टर्म्स हैं और ये k+1 है। यहाँ तक तो वैल्यू फर्स्ट से पुट कर दी, 2k डिवाइडेड बाय k+1। वो मैंने बताया था कि एस एन जो है n इंटू n+1/2 होता, तो एस ऑफ k+1 ये रिजल्ट्स आ जाएगा। इससे मैंने ये चीज़ें कॉमन ले ली, एलसीएम लिया, ऊपर k+1 का होल स्क्वायर बन गया। देयरफॉर पी ऑफ k+1 इज ट्रू बाय PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। तो मैंने आपको कहा है कि पहले 5 सम आज प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट आता है तो मुझे कम्युनिकेट करो। इतना ही काफ़ी है।